Please take your seat. پہلی بات یہ ہے, he is an honorable member of this august house and he is a respectable person. He has been contributing for a very long time. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, اگر آپ کی پارٹی follows the rules, اگر آپ کی اپنی جماعت اور اگر وہ خود رولز کو فالو کرتے, پلیز ٹیک. اچھا نہیں وہ بٹ آئی ایم ناٹ. پلیز ٹیک یور سیٹ. آپ بیٹھیں, آپ کا کام. پلیز میں کیا کرنا چاہتا ہوں. While I am speaking, please, I have given the floor. Please take your seats. سنیں, آپ بیٹھیں. Please take your seat. میں نے پہلے جو جواب دیا ہے, he is an honorable member and he is the honorable member of this august house. اور اگر ان کی کسی وجہ سے, سنیں آپ, پہلے سنیں تو صحیح. اس کے بعد انہوں نے یہاں جو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا, میں نے ریفرنس دیا کہ کس نے پہلے بھی کہا ہے, مگر نہ انہوں نے مجھے کہا ہے نہ آپ کی پارٹی نے کوئی لکھ کے ریفرنس بھیجا ہے. اگر آپ ریفرنس بھیج سکتے ہیں تو دا الیکشن کمیشن دے سکتے ہیں, مجھے کو اپیل کر سکتے ہیں, مگر ناٹ لائک دس کہ ہی از اسٹل دا ممبر. اور جو آپ نے یہ ایلیگیشن کہا کہ آئی ایم پروموٹنگ horse trading or I'm promoting floor crossing. I joined the Pakistan People's Party in 1987 and till date I'm in the People's Party. Therefore, this is no way. Please move the motion. Mr. Chairman, as I moved the amending bill, میں سر اب فیچرز بتا دوں. یہ آپ اس کے بعد پھر اپنی باری پہ بات آپ نے موقع دیا سر, یہ بولے ہیں سر. اب اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں وہ میں نے بتا دیتا ہوں جی. آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے سر. آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان جو پوزیشن ہے ان کی وہ ریٹینڈ ہے. آرٹیکل 6 میں یہ اگر نہیں to the house. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Before starting second reading of the bill, I want to inform the members that the National Assembly has made some amendments in the bill as passed by the Senate. Therefore, in terms of Clause 3 of Article 239 of the Constitution, the bill has been returned to the Senate for reconsideration. The amendments made by the National Assembly pertains to substitution of Clause 2 of the bill as passed by the Senate. Insertion of the new Clause 2A, substitution of Clause 23, amendment in Clause 56 of the bill as passed by the Senate, and omission of the Clause 4, 19, 51 and 55 of the bill as passed by the Senate. Due to the insertion of new clause and omission of 4 clauses, the remaining clauses have only been renumbered without making any changes therein. We will vote upon the amendments, inserted, substituted and omitted clauses separately, by the clauses which remain unchanged will be voted upon as a group. The Minister for Law and Justice may inform the House about the insertion, submission, amendments and omissions made by the National Assembly in the bill as passed by the Senate. Thank you, Mr. Chairman. سر جیسے کہ یہ سب کے علم میں ہے
अगस्त हाउस ने 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया और ये ट्रांसफर्ड कर दिया गया अंडर द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और वहाँ पे नेशनल असम्बली ने जब टेकअप किया तो सरसे में सर कुछ डिबेट जनरेट हुई। दो चीज़ों के ऊपर कुछ कन्फ्यूजन थी। एक तो था कि जो पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो आया रिटेन्ड है इन अमेंडमेंट्स में या नहीं है। सर उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मुझे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा जी, उन्होंने भी मुझे कहा और हमारे कई जो अरकान कौमी असम्बली है उन्होंने भी कहा, इवन अपोजिशन की तकारीर में भी इसकी वजाहत पूछी गई। वो सर जो प्रोविजंस हैं उन्हें क्लैरिटी के साथ दिया गया है। आर्टिकल 176 में ये कह दिया गया है कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो है, यानी जो उनकी पोजीशन है, ये सर एक पोजीशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। और जो मौजूदा इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, he will continue to hold this position until he holds the office of Chief Justice of Pakistan. सर इसी तरह डिफ़ाइन कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पोजीशन को और कह दिया गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आफ्टर द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस, उन दोनों में से जो सीनियर होंगे वो पोजीशन होल्ड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। उसके सर कुछ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट्स हैं, जैसे आर्टिकल 42 में सदर का ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। 214 में सर इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। इसी तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओथ है सर वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। 2-3 जगहों पे सर जो ओमिशंस की गई थी, डिलीट की गई थी क्लॉजेस, उनको सर रीइंसर्ट कर दिया गया है। सर आर्टिकल 6 जो है वो आर्टिकल 6 टेल्स अबाउट द हाई ट्रीजन सर, कि अगर कोई ताकत के बलबूते पे आइन को एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, आइन को ही होल्ड्स इन अबेंस, तो वो हाई ट्रीजन कमिट करेगा। सर जब 18वीं तरमीम के वक्त तमाम ज़ोमा बैठे और सियासी जमातें बैठे, मेरी लीडर ऑफ हाउस भी उस टीम का हिस्सा थे, तो इन्होंने सर ये दरवाज़ा बंद करने के लिए एब्रोगेशन का और मार्शल लॉज का वहाँ पे लिखा कि कोई कोर्ट भी, एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, शैल नॉट वैलिडेट एक्ट ऑफ एब्रोगेशन, हाई ट्रीजन का जो एक्ट है उसमें सर प्लग इन करना था। वो जब सेकंड थर्ड रीडिंग की तो ज़ाहिर है सर ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, तो वो वहाँ पे प्लगड इन नहीं था, वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड डाली गई है। सो जो अब पढ़ा जाएगा आर्टिकल 6, वो पढ़ा जाएगा कि कोई भी अदालत पाकिस्तान में, चाहे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो इंशाल्लाह बनेगी इस तरमीम के पास होने पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या हाई कोर्ट्स हैं, वो आर्टिकल 6 की जो क्लॉज 1-2 में जो बताया गया है कि एब्रोगेट करना, सबवर्ट करना, उसको वैलिडेट नहीं कर सके। तो ये रास्ता बंद करने के मुतरादिफ है मार्शल लॉज का, ताकि जमहूरियत का ये सफ़र चलता रहे। तो सर ये कुछ तरामीम थी जो कि फ्लोर ऑफ हाउस पे फिर मैंने पहले इन्फॉर्म करके एक्सप्लेन भी करता रहा हूँ नेशनल असम्बली में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है आर्टिकल 239 के तहत, ये चीज़ें हमारे पास वापस आई हैं। ये कुछ क्लॉजेज़ हैं जो मॉडिफाई की गई हैं, कहीं पे रीइंसर्ट किया गया है, कहीं डिलीशन हुई है, तो आपने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है सर। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इस पे सर वोटिंग करवाई जाए जो रूल और ज़ाब्ते के मुताबिक।